अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी विंग्स ऑफ परेड सेलिब्रेटिंग 76 इयर्स विद रिपब्लिक डे परेड एयर शो एंड फ्लाई पास्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और गुजरा हुआ आपको रिपब्लिक डे जो है वो बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं। सॉरी और वी आर लेट। पता ही नहीं चला, क्योंकि बता दिया करें यार कमेंट सेक्शन में कि कोई मतलब कि आज ये त्यौहार है या आज ये है इंडिया का, ताकि उस रिलेटेड हम वीडियो ले आए। तो हमें पता ही नहीं था। बहरहाल अभी एक वीडियो लेके आए हैं, कल की वीडियो है ये, और एयर शो हुआ है परेड, तो अभी वही देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सक्लारी पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other two aircraft are Wing Commander Munir Dogra and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीर डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। The formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising one AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. 2 डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। The Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They have the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation fly past Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers, capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising 1C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295
aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर CP रेड्डी। And now the Varuna formation, comprising 1 PATI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PATI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PATI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PATI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhois have got airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Kaur. एक के बाद एक विमान हवा में उड़ान भरते हुए, आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय। अब बारी है Bheem formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring Bheem formation. Leading this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के नेतृत्व में साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Heavy lift transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nijhawan, mentioned in dispatches. Sukhoi is flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayusena Medal, and Wing Commander Sudeep P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 से near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our skies sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying majestically out in the air. Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare, and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron.
17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron Lancers. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. जी तो कैसे लगी परेड शो आपको यार? जी ज़बरदस्त वीडियो थी। और परेड हम हमेशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि सॉरी अबाउट दैट, हम लेट हो गए और ये दिन जो है बहुत अहम था आप लोगों के लिए और हमने मिस कर दिया और ना हम पोस्ट लगा सके ना वीडियो पे आ सके। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पहले बता दिया करें अगर कोई ऐसा दिन होता है, ऐसा इवेंट होता है, तो हो सकता है हम किसी काम में रिलेटेड हों या वीडियो क्रिएट करने में या ऐसे मौजू को हमने पकड़ा हो और उसके बाद वो दिन जो है वो मिस आउट हो जाए, जैसे हो गया। और रिपब्लिक डे था आप लोगों का और वो मिस कर दिया। लेकिन यह है कि आज वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और आप लोगों की सपोर्ट रहेगी। बहरहाल ये परेड जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और वही चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। लेकिन यह है कि कह लें कि फ़ख्र की बात होती है, एक गौरव की बात होती है और आपका एक किस्म का डिफेंस सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है और एक शान आन बान। और वो पुराने पायलट जो हैं वो आपको लीड कर रहे होते हैं और नए पायलट जो है उस फील्ड में आ रहे होते हैं। क्योंकि एयरफोर्स के लोगों के साथ थोड़ा बहुत मेरा उठना बैठना है, यही कह लें, क्योंकि किसी के थ्रू मेरी बातचीत हुई और वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अपने हिसाब से और टू द पॉइंट जो है वो बात करते हैं और टू द पॉइंट चलते हैं। और ऐसा बंदा, और जैसी ट्रेनिंग उन्होंने बताई कि हम लोगों की जाती है और हम लोग जिस तरीके से रहते हैं और जो खाना पीना करते हैं, तो यकीन माने एक जहाज़ जो है मैं राफेल देख रहा था, सबसे खूबसूरत जहाज़ था और फाल्कन बोल रहे थे उसे और बिल्कुल उसकी शेप भी वैसे ही है जैसे एक बाज जो है अटैक करता है और अपने विंग्स जो है क्लोज कर लेता है और क्लोज विंग में उसकी सिचुएशन ऐसी होती है उसके विंग्स की, तो वो विंग्स सिचुएशन में इसको क्रिएट किया गया उसी शेप में और ये वाकई तेज़ है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया हमेशा अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ बेहतर करता आ रहा है, कुछ ना कुछ इन्हेंस करता आ रहा है चीज़ों को। तो वाकई जो भी उन्होंने एयरक्राफ्ट जो हैं वो दिखाए हैं वो नो डाउट अपनी अपनी फील्ड में। अपाचे स्टार्टिंग में आ गया, C-35 था मेरे ख्याल 95 था, वो बड़ा एरोप्लेन जो व्यक्तियों को ले जाने के लिए था और फौजी जो लोग हैं उनको ले जाने के लिए सेना जो है वो गेम में भी यूज़ होता रहा है। ये गेम जो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, आप लोग खेलते होंगे, कभी खेली होगी पास में क्योंकि अभी तो मेरे हाथ में क्लोज है वहाँ पे, तो नहीं वो है। है।
तो उसमें BGMI वो यूज़ होते हैं जहाज़ जो है, तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो रीजनल लोकेशन में, रीजनल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, उनको पता है भाई कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना और टैकल करना है। टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। अभी भी मैं कहूँगा कि इन रियलिटी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, वो कहीं न कहीं अपनी ओरिजिनल जो टेक्नोलॉजी होता है उसको हाइड ही रखता है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो प्रदर्शन नहीं किया जाता जिन चीज़ों का, ये चीज़ों को शो नहीं किया जाता। हमने तो अभी ये शॉर्ट सा एक क्लिप कह लें एक जो है वो देखा है, ये एयर परेड थी एक किस्म की और उसमें तकरीबन 4 से 5 कैटेगरीज़ जो है जहाज़ों की दिखाई गई हैं। अपाचे जो है, मुझे पर्सनल वे में बहुत खूबसूरत जहाज़ लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ पे आपने कह लें दूसरे एरोप्लेन जो है, दूसरे हेलीकॉप्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं, इमरजेंसी व्हीकल कह लें उनको एक किस्म का, ठीक है? वो उसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है, ये अटैकिंग ज़ोन में आती है ये चीज़ जो है और ये अटैक करने के लिए पूरा कह लें कि उसमें क्षमता मौजूद है और देख के भी खूबसूरत लगा और इन रियलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई एन्जॉय कर रहा होगा ना वो इन माय ओपिनियन वो बच्चे कर रही होंगी वहाँ पे क्योंकि उनके लिए ये एक अलग बात है क्योंकि आने वाला फ्यूचर है भाई इंडिया का और हम भी जब बच्चे होते थे हम भी इन चीज़ों को देखते थे लेकिन ये है कि एक प्रैक्टिस जोन में रहना और अपने मुल्क की हिफाजत करना ये बड़ी बात होती है और इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में अपने आप को मनवा रहा है और डिफेंस के मामले में और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है रफ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है इस जहाज़ का एक और बीच में मैं Sky 30 वो अब खूबसूरत जहाज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, मुख्तलिफ़ उनका काम है और बहरहाल ये है कि ये परेड देखकर बहुत अच्छा लगा और मोदी साहब जो हैं, वो नीचे बैठ के उस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं और नो डाउट फ़ख्र उनको भी है और सारी कह लें जनता जो है भारत की, उनको फ़ख्र इंडोनेशिया होगा के उनके भी ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे हाँ, और भी थे। पीछे वो भी नज़र आए हैं और बहरहाल वो डिटेल तो हमें ज़्यादा पता नहीं है अली भाई कोई ने लेकिन हमें जो सरसरी हमने फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं अभी तो पता चला कि यार क्या सिचुएशन और क्या हुआ और किसने विज़िट किया। वो डिटेलिंग वीडियो नहीं थी लेकिन ये एयर परेड थी और मज़ा आया जी, एन्जॉय किया, हमें भी फ़ील हुआ कि हम भी वहीं पे जो है वो बैठे हुए हैं और इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आया जी। बिल्कुल जी, जितने भी ग्रुप थे उन्होंने जो भी कैप्टन उनको लीड कर रहे थे, अच्छे तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया और अपनी टीम को लेकर एक बहुत ही अच्छा-सा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें मोदी साहब बैठे हुए थे और वो भी देख रहे थे और इंडिया की जो आपकी सदर हैं, वो भी बैठी हुई थी वहीं पर। बड़े-बड़े नेता बैठे हुए थे, इंडोनेशियन नेता भी आए हुए थे, तो इंडियन जो एयर फ़ोर्स है, इसकी एक ताकत जो आज दर्शा रहे थे जितनी भी एयर फ़ोर्स के लोग थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा मैनेज किया हुआ है माहौल। तो बड़ा अच्छा लगा जी वीडियोज़ देखकर। वाक़ई जी और आप सबको जो है वो शुभकामनाएँ रिपब्लिक डे की और हमें वाक़ई ये अच्छा लगा है परेड देख के और दूसरी परेड भी मैंने देखी थी थोड़ी-सी जो कि अपना उनकी आर्मी की जो हाँ, होती है। वॉक करते हैं जिसमें तो हाँ। वो वाली परेड भी मैंने देखी थी लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि उसमें लगे हुए थे सारे हाफ़ के तराने लगे हुए थे। तो जिसकी वजह से वो नहीं लेके आए क्योंकि वो कॉपीराइट आएगा या स्ट्राइक आ जाएगा। तो बहरहाल ये है कि वो भी मैंने देखी है और ये एयर जो है वो परेड ये भी अभी देखी है। उसके अलावा वेलकम भी हुआ है इंडोनेशियन जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका भी वेलकम हुआ था। मोदी जी ने किया था वेलकम और हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे जो है अपना एक शो करवाया गया, पूरी दुनिया के सामने अपना एयर डिफेंस शो करवाया गया है और उसकी कुछ झलकें दिखाई गई हैं और अपने त्यारे दिखाए गए हैं और पायलट की जो महारत है, वो भी शो करवाई गई है कि पायलट जो हैं वो हमारे पास मतलब कि खाली ये नहीं कि जहाज़ ही होते हैं, पायलट भी हैं उनको चलाने के लिए और सही तरीके से चला सकते हैं, जैसे कहेंगे वैसे कर सकेंगे। ये मतलब कि पूरी दुनिया को एक अपनी एक ताकत जो है ना वो दिखाने का भी एक ज़रिया होता है ये। तो बहरहाल ये है कि एक ही कतार में चलना और तीनों को जो है वो जहाज़ एक ही कतार में लेके चलना, विंग कमांडर ये थे ना। आसान वैसे काम नहीं होता लेकिन देखने वालों को लगता होगा कि ये क्या मतलब कि सीधा बस जा ही रहे हैं ना। विंग लेकिन कमांडर ये बड़ा होल्ड मुश्किल कर काम रहे होते होता हैं है। भाई, सबसे अच्छी चीज़ तो बीच में जो 360 कैमराज़ लगे हुए हैं, बिल्कुल, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और फ्रंट ऑन भी हैं, बैक पे भी हैं और पूरा एक व्यू जो है, व्यूअर्स को दिखाया जा रहा है। ऑन बिल्कुल। स्क्रीन भी वहाँ पे लोग जो बैठे होंगे, उनको भी नज़र आया होगा कि एक पायलट वो उस वक़्त लाइव चल रहा होगा कि बीच में, वो हाँ। क्या फ़ील कर रहा है उस चीज़ को।
तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका था, क्योंकि बिल्कुल। हम कह लें कि नंगी आँख से, खुली आँख से उस चीज़ को देखते हैं कि जहाज़ गुज़र गया, और इस स्पीड में गुज़र गया और इस रफ़्तार में उसने ऐसा एक्ट किया, ठीक है? एक किस्म का प्रदर्शन करना होता है, और लोगों को वो अच्छा भी लगे। त्रिशूल उन्होंने उस चीज़ वो के साथ त्रिशूल क्रिएट वाला किया। जो फॉर्मेशन हाँ, बनाई है ना, मतलब वो डिफरेंट मतलब किया कि उन्होंने। अच्छा था वो। बिल्कुल, और वो इस तरीके से जो ज़मीनी फ़ौज का परेड हुई होगी, वो चीज़ें हुई होंगी, वो उस हिसाब से किया गया होगा, क्योंकि हमने जो पास्ट में की गई हैं परेड्स, उनके मैंने क्लिप्स जो हैं बहुत दफ़ा हम लोगों ने भी वीडियो में देखे हैं। जिस तरह वो सेना जो है अपने आप को तैयार करती है, एक बाइक पे 6-6, 7-7 लोग जो हैं बैठ के किस तरह प्रदर्शन करते हैं। और जंग की सिचुएशन को होल्ड भी करना, लेकिन ये एक कह लें कि एक एग्ज़ाम्पल होता है कि उनमें ताकत, उनमें वो चीज़ जो है, उनमें वो जज़्बा जो है, वो कितना उस चीज़ को सिर्फ़ उभारने के लिए वहाँ पे किया जाता है, लेकिन मैदान जंग में उन्होंने ये इतने स्टाइल के साथ ये नहीं करना होता, अरे क्योंकि मैदान जंग में तो फिर कुछ और लोगों चीज़ है ना, को ये सिर्फ़ ये अपनी थोड़ी बहुत ताकत शो करवाने वाले हैं तरफ। बिल्कुल। और जहाज़ जो है नो डाउट वो राफ़ेल का, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा फ़ेवरेट है। और अमेरिकन जो जहाज़ है, वो भी फ़ैल्कॉन ही उसका नाम रखा हुआ है, जो उनके पास ख़ास है, जो उनका, मेरे ख़्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो जो है जहाज़ जो है तकरीबन सेम टू सेम ही लग रहे हैं। और अगर आने वाले वक़्त में, इन माय ओपिनियन, के आने वाले वक़्त में अगर इंडिया जो है ये जहाज़ में टेक्नोलॉजी में आगे जा सकता है और कर भी रहा है, और मे भी हो सकता है आने वाले वक़्त में अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो अभी टॉप पे चल रही है, रशियन टेक्नोलॉजी जो टॉप पे चल रही है, इंडियन टेक्नोलॉजी भी टॉप पे हो उस लेवल पे, ठीक है? और सॉरी अबाउट दैट अगर लोगों को बात जो है, क्योंकि आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए, तो बेहतर हो सकता है। और मेरे ख़्याल में, मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा किसी चीज़ का, लेकिन वो बहुत ऊपर, पाकिस्तान का तो कहीं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उससे बहुत बेहतर है टेक्नोलॉजी जो है। तो बहरहाल रेट देख के अच्छा लगा, और इस चीज़ को एन्जॉय भी किया, बिल्कुल जी। और आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा। अगेन आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो इस दिन की। सॉरी अबाउट दैट हम लेट हो गए। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।